Dear students, today we will discuss some more animal adaptations. Before this lecture, we have studied all different types of plant adaptations and animal adaptations. Very important animal adaptations we have already discussed, like camouflage, like बच्चों mimicry, migration, and today we will discuss some more types of animal adaptations. Dear students, this is the last lecture of this chapter, population interactions and adaptations over. In coming days, we will discuss another paper of fish culture and fisheries. Be careful, BSc students. क्या काम ने? This is the last lecture of this chapter, population interactions, adaptations, सारे सब कुछ बच्चों we have discussed. नोट करें बच्चों, ये सब PDF फाइल, ये नोट्स हमने बच्चों वीडियो लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में, बच्चे पता नहीं अभी भी बेटे क्यों दिक्कत कर रहे हैं बच्चों, हमने कहा वीडियो लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स PDF फाइल अपलोड कर दी है बच्चों, डाउनलोड कर लें, स्टडी करें, नोट्स बनाएं, सेपरेट नोटबुक बनाएं बच्चों, हर पेपर की, हर यूनिट की, चाहे वो सेल बायो की है, चाहे बच्चों ये इकोलॉजी की यूनिट है, चाहे बच्चों फिश वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे तो नोट करें, ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। तो क्या कुछ बता रहे थे? टुडे वी विल डिस्कस सम मोर टाइप्स ऑफ एनिमल अडेप्टेशंस, बिहेवियर अडेप्टेशंस इन डेजर्ट लिजर्ड्स। क्या कहा बच्चों? बिहेवियर एक्टिविटीज, उनके अकॉर्डिंग बेटे सम डेजर्ट लिजर्ड्स अडेप्टेड है। देखिए क्या कहा? सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियर adaptations to cope with external conditions. These desert lizards, they show some behavioral activities in order to adapt in the surrounding conditions. During daytime, when body temperature decreases, then these desert lizards, they enjoy the sun radiations, they absorb heat. And when external conditions, as temperature rises, these animals migrate, they move in shaded areas. They start to enjoy in burrows. Phenotypic adaptations, very important point, this one is NEET students, कुछ points बेटे NEET competition वाले बच्चों के लिए, phenotypic adaptations at high altitudes. Phenotypes means external morphology. These animals show some phenotypic adaptations at high altitudes. The pupils which are living at high altitudes, more than 3,500 meters, like Leh, Rohtang, Manali, etc. In such pupils adaptations, their RBC count more as compared to we are living in plains. क्या कहा बच्चों? उनका हीमोग्लोबिन, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी लेस, वहां लो टेम्परेचर बच्चों, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अडेप्ट करना उनको, मोर हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज लेस and their RBC count is more as compared to the people living in plains. At high altitudes, we feel altitude sickness. Some symptoms of this altitude sickness like nausea, fatigue, heart palpitations. बच्चों ऐसा क्यों हुआ? Due to low atmospheric pressure. Body doesn't get enough oxygen. क्या काम ने? At high altitudes we feel some sickness like nausea, like fatigue, heartbeat increase होगी, breathing increase होगी, heart palpitations. क्योंकि बच्चों at high altitudes ऑक्सीजन जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पा रही है, और बच्चों ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. However, gradually our body gets acclimatized and we become normal. क्योंकि हमने कहा बच्चों phenotypic adaptations,
our body starts to produce more RBCs, more erythropoiesis, RBC काउंट इंक्रीज होगा। नोट करें कंपटीशन वाले बच्चे। ये देखिए बच्चों, क्या काम ने ब्लड सेल प्रोडक्शन, hemopoietic tissue starts to produce more RBCs, erythrocytes उनके काउंट को इंक्रीज करना है। Decreasing the binding capacity of hemoglobin at high altitudes at low atmospheric pressure, हीमोग्लोबिन उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ गैसेस उसको डिक्रीज करना बच्चों, ना कि इंक्रीज करना। नोट करें। एंड हार्ट बीट इंक्रीज होगी बच्चों, ठीक है। और जो पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स उनका आरबीसी काउंट इज मोर, हीमोग्लोबिन उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी इज लेस एज कंपेयर टू पीपल लिविंग इन प्लेन्स। ये देख रहे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स for all BSc students and for competitive exams like NEET GATE, Bergmann's rule. The birds and mammals, बेटे नोट करिए एक पॉइंट, the birds and mammals, क्या कहता है बच्चों, बर्गमैन की बात कर दो, जो warm blooded animals, कौन से birds and mammals are warm blooded animals living in cold regions. क्या कहता है बच्चों Bergmann's rule, कि द बर्ड्स एंड मैमल्स विच आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, उनका बॉडी साइज, उनका बॉडी वेट मोर एज कंपेयर टू द एनिमल्स लिविंग इन प्लेन्स इन वार्मर रीजन। कोल्ड रीजन वालों की बात करें, बर्ड्स का भी मैमल्स का भी, दोनों का बताया हमने। एग्जाम्पल देख रहे बच्चों, पोलर बियर much larger in size as compared to the black bear. Similarly ये देख रहे बच्चों एंटार्क्टिक पेंगुइन, एंटार्क्टिक पेंगुइन का बॉडी साइज देखे तो बच्चों करीब अबाउट 1 मीटर इन साइज एज कंपेयर टू अदर रीजन्स। लाइक ये देख रहे बच्चों कहाँ, पेंगुइन ऑफ गैलापागोस आइलैंड्स अबाउट हाफ ए मीटर का। और वहां बता रहे बच्चों हम पोलर दिस पेंगुइन ऑफ एंटार्क्टिक रीजन इट्स साइज अबाउट 1 मीटर। एलेंस रूल इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट स्टूडेंट्स। एक पॉइंट नोट करेंगे बच्चों, एलेंस रूल क्या कहता है बच्चों, एलेंस रूल्स द एक्सट्रीमिटीज ऑफ मैमल्स का हमने बच्चों यहां हमने यूज किया बच्चों बर्गमैन में बर्ड्स एंड मैमल्स, यहां स्ट्रिक्टली हम यूज करें बच्चों एलेंस रूल्स में मैमल्स एक्सट्रीमिटीज मीन्स देयर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स लाइक पीना, ईयर की बात करें बच्चों, उनका नोज, उनकी टेल, उनके लेग्स। क्या कहता है बच्चों एलेंस रूल्स, द एनिमल्स फाउंड इन कोल्डर रीजन देयर एक्सट्रीमिटीज आर ग्रेटली रिड्यूस्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बॉडी हीट लॉस। नेक्स्ट पॉइंट इज Jordan's rules, very important NEET students, very important for NET and GATE students. Jordan's rule क्या कहता है बच्चों, Jordan's rules फिश पे काम किया बच्चों, फिश पे भी कहा बच्चों, कॉड फिश के ऊपर क्या स्टडी किया बेटा जॉर्डन ने, उनकी वर्टिब्री, उनकी बैकबोन, वर्टिब्रीज, उनका नंबर स्टडी किया। बी केयरफुल। देख रहे बच्चों Jordan's rules, the fish found in water, कौन से वाटर बच्चों, एट लो टेम्परेचर, उनके वर्टिब्री, उनका काउंट इज मोर एज कंपेयर टू फिश फाउंड इन वार्मर वाटर। क्या कहता है बच्चों जॉर्डन, देखते बच्चों 58 वर्टिब्री, नोट करें बच्चों, हमने कहा हायर स्टडीज वाले 58 वर्टिब्रीज इन कॉड फिश की बात कर रहे हैं, हैचिंग एट 4 to 8 डिग्री। अगर लो टेम्परेचर पे बच्चों हैचिंग है तो उनके वर्टिब्री का काउंट इज मोर 58 का हमने, एंड टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो बच्चों अकॉर्डिंग टू जॉर्डन्स रूल्स द वर्टिब्री काउंट डिक्रीजेस वार्मर कंडीशंस में। देख रहे बच्चों 54 वर्टिब्री इंस्टेड ऑफ 58, 54 वर्टिब्री इन ए फिश। कौन सा फिश बच्चों, कॉड फिश, हैचिंग एट 10 to 11 temperature. Gloger's rule क्या कहता है बच्चों Gloger's rule, the mammals
जॉर्डन ने काम किया बच्चों फिश के ऊपर, कॉड पे पर्टिकुलरली। एलन रोज ने काम किया बच्चों कहाँ, मैमल्स, उनकी एक्सट्रीमिटीज, उनके बॉडी पार्ट्स, उनके टेल, पीना, लेग्स, वो सब स्टडी किया। और बच्चों बर्गमैन की बात करें तो बर्ड्स एंड मैमल्स, यहां स्टडी करें बच्चों ग्लोगर्स रूल। क्या कहता है ग्लोगर्स, द मैमल्स, द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो बच्चों फाउंड इन वार्मर कंडीशंस, उनका बॉडी कलर डार्कर एज कंपेयर टू the other animals found in cold regions. And this is the last rule, very important, Rensch rule. Rensch ने काम किया बच्चों बर्ड्स के विंग्स के ऊपर। क्या स्टडी करता बच्चों Rensch rule? The birds of colder region, उनके विंग्स नैरो इन साइज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फिर नीट स्टूडेंट्स के लिए यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। बच्चों यूरीथर्मल, यूरी मीन्स वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। The animals are well adapted to tolerate high range of temperature. जो नैरो रेंज की बात करें तो बच्चों हम वर्ड यूज करेंगे स्टीनोथर्मल। The animals which are well adapted, कहाँ, they can tolerate only narrow fluctuations of temperature. These are स्टीनोथर्मल। ये चेंज होता है तो बच्चों सेंटेंस यूरीहेलाइन means wide range of tolerance of salts, and stenohaline, the organisms which are less adapted, which survive in less fluctuations of salt, narrow range of salt tolerance, then it is stenohaline. तो बच्चों ये सारा सब कुछ एनिमल एडेप्टेशंस बेटे कुछ हमने रूल्स बताए, और इसके बाद बच्चों हमने कहा इन नेक्स्ट लेक्चर मीन्स कल जो हम स्टडी करेंगे बच्चों फिश कल्चर एंड फिशेस। थैंक यू।